Okay, so today is the second day of our uncountables in English. Last time we have seen some of the words, like for example, furniture, weather, plastic, money, paper, music, rice, sugar, salt, butter, toothpaste, cloth, air, soup, milk, oil, water. All these are what? Uncountable, correct? Last time I asked you a question that how time is uncountable in English. Any answer, Miss Supriya? Sir, Time is uncountable. time is Yes? both countable or uncountable. How When time you is use countable? Yeah, okay, continue. when, when we use 5 o'clock, 7 o'clock, then it time is countable. Or when we use it took some time, Okay, okay, then time is uncountable. all right. Means when we use preparation, preposition along with it. Means I am busy. We can call after some time. Then time is uncountable. And if you say 1 hour, 2 hours, 3 hours, it is countable, Then right? time is then time is countable. Okay. I'll tell you one more thing. 1 hour, 2 hour is what? It is just the span of time. Correct? It is not exactly time. It is just the span of time. It is not exactly the time. It is just the span of time. It is just period. It is not exactly the time. But the real time is what? It is uncountable. Real time is what? Uncountable. Now hours, minutes, seconds, years, months, days, weeks are made by humans. Yes or no? Yes, Are made by humans. Correct? But yes, does the God contain a clock? No. The clock was invented by the humans only. Yes or no? Just yes. for ourselves to measure the time. But generally, we can't measure the time. How? I'll tell you how. If you see your childhood, can you measure your childhood? No, No. Can we measure our manhood? no, No. Can we measure the time that we are going to live on the earth? no, No. Do we know when are we going to die? no, No. Do we know anyone's life's last breath? no. No. Ultimately, this is called time. Now, let me tell you one more thing. If you see their time, a person's childhood is there. अभी for example कोई बच्चा है, उसकी बचपना कब तक रहेगा हम लोग बता सकते हैं क्या? बोले नहीं, 10 साल तक के रहेगा बच्चा, 10 साल के बाद में बड़ा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता है जनरली? नहीं होता है. इफ यू सी देयर, अगर हम लोग बोलेंगे मैं 10 साल का हूँ और आज रात को मैं 11 साल का होने वाला हूँ, आज रात को 12 बजे, तो मैं बोल सकता हूँ आज रात में 12 बजे मैं बड़ा हो जाऊंगा. ओ माय गॉड, आज मैं बड़ा हो गया हूँ. कैन वी से लाइक दिस? नो. सो चाइल्डहुड हम लोग मैटर नहीं, मतलब मैंने मेजर नहीं कर सकते. सेम केस रोहित का चाइल्डहुड अपन ने मेजर कर पाए थे क्या? कोई मिल गया मैं? नहीं. 25 साल का होने के बाद में भी बच्चा था वो, है क्या नहीं? यस नो. सो अल्टीमेटली वी कांट काउंट, वी कांट मेजर आवर चाइल्डहुड. सेम केस फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन कब तक के जवान रहेगा हम लोग बोल सकते हैं क्या? कुछ लोग रहते दारू बीरू पीते, सिगरेट वगैरह पीते, अंडर 35 40 के अंदर ही बुढ़े हो जाते हैं. ये सनो. एंड इफ यू सी देयर बॉलीवुड स्टार्स आर देयर, 55 साल के होने के बाद में भी बुढ़े नहीं हो रहे वो लोग. सो मीन्स व्हाट? अल्टीमेटली कैन वी काउंट आवर मैनहुड? नो. no, कैन वी काउंट आवर चाइल्डहुड? नो. no. सो अल्टीमेटली टाइम इज व्हाट? मैनहुड, चाइल्डहुड, ये सब हमारा टाइम ही है और हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते. गेटिंग इट? सेम केस. कैन वी जस्ट मेजर द टाइम बाय मीन्स ऑन फिंगर्स without hours and all? No, we No, can't count. Yes or no? फॉर एग्जाम्पल रात कितनी बड़ी रहेगी? हम लोग काउंट कर सकते हैं कि रात कब से कब तक रहेगी, कितनी लंबी रहेगी? No. Time is ultimately uncountable. Same case, tennis is also uncountable. Yesterday I told you that I'll show you the answer later. Tennis is uncountable. Tennis पण uncountable आहे का? कारण की जिथे काही स्पोर्ट्स आहेत, जे काही आपल्याकडे स्पोर्ट्स आहेत ना, ते सगळे कशावर चालतात? टाइमवर चालतात. येस नो? Yes, आणि टाइम काय आहे? अनकाउंटेबल. अब जब टाइम ही अनकाउंटेबल है, तो जितने भी स्पोर्ट्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? uncountable. अनकाउंटेबल. सेम केस, टेस्ट क्रिकेट होता है 5 डेज का. डे क्या हो गया वहां पर? टाइम है ना. 5 डेज के अंदर खत्म करना होता है, टाइम के ऊपर चलता है वो. यस नो? इट इज व्हाट? अनकाउंटेबल. सो टाइम इज व्हाट? अनकाउंटेबल. दैट्स व्हाई ऑल द स्पोर्ट्स आर अनकाउंटेबल. लाइक टेनिस, हम लोग ऐसे बोले हैं कि मी आज 3 टेनिस खेळले आणि 4 फुटबॉल खेळलो मी, बोलणार का? नो.
Because football, tennis, cricket, all these are what? Running on time. So time is what? Uncountable. That's why sports will be uncountable too. Next one. Last time we have seen information here, correct? Information is absolutely uncountable. Same case, mail. Mail is also uncountable. Why? Because mail contains, Information. correct? Mail के अंदर क्या होता है? Information होता है, and information is absolutely uncountable. So mail will be uncountable too. Are you getting the point? Information is uncountable. That's why mail will be uncountable too. Okay? Same case. Let's go for the next one. Now let me continue it. As we have started yesterday with weather, luggage, next traffic. Now traffic is also uncountable. How? अब ट्रैफिक बोले तो खाली गाड़ी का ट्रैफिक नहीं होता है, ह्यूमंस का भी ट्रैफिक होता है. ये सुनो, अभी पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने लोग हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं. नो. अगर हम लोग काउंट करना अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर काउंट करना स्टार्ट करता हूँ कैंप से काउंट करते 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 अगर मैं कोंडवा तक गया, मालूम पड़ा कि कैंप के अंदर 4 लोग मर गए, वापस आएंगे काउंट करने के लिए? नो, बिकॉज इफ यू सी देयर every second people are dying and every second people are getting burned. Yes or no? Yes. अभी हम लोग अगर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो एक्यूरेट लोग को डिजिट किया, कल बॉम्बे का काउंट करने गए, मालूम पड़ा पुणे में 4 लोग मर गए, 5 लोग पैदा हो गए. So means what? Ultimately we can't count the people in the world, accurate people. Yes or no? Yes. सर कट हो रही है. Next, travel. Travel is, अभी आ रहा है आपको आवाज बराबर? Yes. Hello? Yes. Okay. Yes, Travel. sir. So travel is also uncountable. Travel म्हणजे प्रवास, सफर करना. Okay, सफर. अभी जो प्रवास आप लोग सफर करते हैं, travel is also uncountable. Can we count travel? No. अब मैं बोल सकता हूँ क्या मैं 3 बॉम्बे जा रहा हूँ, 4 गुजरात जा रहा हूँ, 5 बैंगलोर जा रहा हूँ? Can we say like this? No. So travel is absolutely uncountable. हम लोग मेजर करके ट्रैवल करते क्या? मेजर करके कभी ट्रैवल करते क्या? No. We cannot measure the travel. So travel is also uncountable. हम लोग बोल सकते हैं क्या मैं 3 कोंडवा गया था, 5 कैंप गया था, 6 कोल्हापुर गया, 7 सोलापुर गया, बोलेंगे हम लोग ऐसा? नहीं. No. So travel is also uncountable. Next one, sky. अभी कुछ लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे sky is one, है क्या नहीं? ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स लोगों को लगता है कि sky is only one, but it is absolutely wrong. You know why? Because let me tell you here. If you see, this is a box. अगर आप लोग देखेंगे एक बॉक्स है, करेक्ट? ये एक बॉक्स है. So मैं इसको एक क्यों बोल रहा हूँ? Because it is starting from here and ending here. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है. So I can say one box. Yes or no? I can say one box. Starting from here, ending here. One box. Correct? But sky कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? पुण्यापासून सुरू होतो, बॉम्बेला फिनिश होतो, असं बोलू शकतो का आपण? No. No. So कहाँ से स्टार्ट हो रहा है sky? Do we have the starting point? No. Do we have the ending point? No. No, sir. Ultimately, sky is uncountable. No, sir. No. You can't count the sky. For example, bottle. I can count the bottle. Why? Because starting from here, ending here, it is what? One. Same case, the box is there. Starting from here, ending here, it is what? One. But where is sky? Sky, we can't see the starting and the ending point of sky. So ultimately, sky is uncountable. We can't count the sky. Is that clear? Clear? Yes, sir. Next, Yes, sir. fun. Fun is also uncountable. Can we count fun? No. Fun No. मतलब मज्जा, है कि नहीं? अपन मज्जाला काउंट करू शकतो का? नहीं. No. No. मैं महक के बर्थडे में गया था, मैंने वहां पे 70 मजा किया, बाकी 30 क्यों नहीं किया? क्योंकि लाइट चली गई. Can we say like this? No. No. So fun No, and sir. enjoyment both are the same. Fun and enjoyment both are the same. Fun is also uncountable and enjoyment is also uncountable. Fun and enjoyment both are uncountable. Fun and enjoyment both are uncountable. Why? We can't count it. हम लोग fun को, मजे को count कर सकते हैं क्या? ओ मुझे बहुत मजा आ रहा है 70, मुझे उससे ज्यादा मजा आ रहा है 90. Can we say like this?
No. So ultimately fun and enjoyment both are uncountable. Next one, accommodation. What do you mean by accommodation? Land. Land, जगह, रहण्याची सोय है का नहीं? रहने की जगह होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Accommodation. अभी जो मैं जगह पर बैठा हूँ, it is also called accommodation. ये भी जगह है. जहां पर मैं बैठा हूँ, मैं उसको काउंट कर सकता हूँ कि जगह को? No. No. Can we count the property on our finger? Square feet में नहीं, finger पे count कर सकते हैं हम लोग? No. No. The things which No, could sir. not be counted directly on your fingers are what? Uncountable. Uncountable. जिसको मैं फिंगर पे नहीं गिन सकता उसको मैं क्या बोलूंगा? अनकाउंटेबल. पानी को फिंगर पे गिनते हैं क्या? नो. नहीं. अनकाउंटेबल. No, sir. सेम केस जमीन को. अभी सपोज फॉर एग्जांपल लैंड है, ये जगह है, जमीन है, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ? 1 2 3 बोलेंगे ऐसा? नो. No, सो sir. अल्टीमेटली accommodation, land is absolutely uncountable. रहने की जो जगह होती है uncountable है. Time is uncountable. I taught you now. Next, space. Space म्हणजे खला, अंतराळ. ऊपर होता है ना space, आसमान में. That is what space. Space is also uncountable. Can we count space? Generally no. We can't count No, space. sir. अभी हम लोग space को count कर सकते हैं क्या? सूरज और चांद कितना कितना दूर पे है? बता सकता है कोई? Yes, can you please tell me? What is the No. distance between moon and sun? Generally we can't count it. Yes or no? It is what नहीं बता space. सकते ना सर. पता ही नहीं, नहीं पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता है. अगर किसी को मालूम है तो झूठा है आदमी वो. क्यों? काउंट करने कैसे कहते हैं? इंची टेप लेके कहते हैं. अंदाजा लगा. अंदाजा तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ. ऐश्वर्या तुम्हारी दूसरी भाभी है, अंदाजा कुछ भी लग सकते, तो अंदाजा के ऊपर दुनिया नहीं चलती है. Getting it? ये So, अंदाजा लगाने वाला. अरे ये आपके लिए था अंदाजा, वो आपके लिए, वो शोएब के लिए. Okay, so enjoyment is uncountable. Space is also uncountable. Next, life. Life is also uncountable. How? How life is uncountable? Miss Mahek, how life is It can't uncountable? be determined. हमको पता नहीं होता कि हम कब मरने वाले हैं ऐसा. आगे चुप के सही ले वाले, कब मरने वाले, आपने क्या करने का, आपने इंग्लिश में बोलने का. मतलब लाइफ में कुछ भी हो सकता है ना. आगे सही इंग्लिश में बोलने का क्या हो सकता है लाइफ में? We don't know our life. No. Let me tell you. Do we know when are we going to die? No. No. So ultimately life is uncountable. Why? Because the life runs on? Time. Correct. And time is? Uncountable. Simple. Water is uncountable. Why? Because it is Liquid. liquid. And liquid is? Uncountable. So water is? Uncountable. Simple. Same case. Uncountable. Life is uncountable because it runs on Time. time. And time is what? Uncountable. Uncountable. So life will be uncountable. Simple. We don't know when are we going to die. So ultimately life is uncountable. Let's go for the next one. There are some other words too. For example, advice. Advice is also uncountable. Can we count advice? No. No. Why? Because it is the collection of information. Yes or no? It is a kind of information. Advice is what? The kind of information. Yes or no? Advice में आता क्या है? Information रहती है ना. For example, अब मैं आपको एक अच्छी advice दे रहा हूँ. Practice at home. Learn verbs. Listen the tape scripts. Read the tape scripts. अच्छी बड़ी advice है. और छोटी advice क्या है? Don't do anything. Go to the terrace and jump down. Life finish. मजाक कर रहा हूँ. करना नहीं. सही बता रहा हूँ कि advice है. छोटी advice, बड़ी advice. Can we count advice? No. No, generally we can't count advice because it has information and information is uncountable. अपने इंडिया में, अपने मराठी में, अपने हिंदी में advice count करते. हम लोग बोलते ना, मी तुला 2 advice दिलते. असं कर नाही तर असं कर, आहे का नाही? पण Yes. इंग्लिश मध्ये आपण काउंट करू शकत नाही. आपण काउंट करू शकत नाही advice. Advice is absolutely uncountable. इंग्लिश में अपन advice को काउंट नहीं कर सकते, right? So advice is absolutely uncountable. Next one, news. News is also uncountable. Why? Because news has, correct, it is has information. The news has information. Yes or no? News के अंदर क्या होता है? Information होता है. And information is what? Uncountable. Uncountable. So news is also uncountable. अब news में क्या होता है? Information ही होता है ना. अरे वहाँ पे ऐसे भूकंप आया. अरे यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स जो है वो बढ़ गए.
वहाँ पे कोरोना पेशेंट्स अच्छे हो गए. So means what? This is what news. So news is what? Information, and information is uncountable. That's why news will be uncountable too. Next one, work. Work is also uncountable. आपण बोलतो ना, मी तुला 2 काम सांगितलेले, तू माझे 3 पण काम केले नाही. अपने मराठी में, अपने हिंदी में काम काउंटेबल है, but in English, काम work is absolutely uncountable. How work is uncountable? Because work runs on time, and time is what? Uncountable. For example, if you are working in a company, अपन unlimited काम करतो का? नाही. 24 तास काम करणार मी. ठीक. No, we work there on a specific time. Yes or no? Yes. मैं सुबह 9 बजे आऊंगा, शाम को 5 बजे जाऊंगा. I'm going to work only 7 hours, 8 hours, 10 hours. Yes or no? So ultimately work runs on time, and time is what? Uncountable. Correct. So work will be uncountable too. Okay. Next one, energy. Can we count energy? No. No. मेरे अंदर बहुत एनर्जी है. दिखा सकता हूँ क्या मैं? No. मेरे अंदर कितना एनर्जी है? Tell me. How much energy do you have in your body? Tell me. Can we count energy? No. No, not at all. Let me tell you one more thing. Energy से याद आया मुझे, कुछ मैं आपको बताता हूँ. Let me tell you one more thing. अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से मैं देख रहा हूँ, एकदम चुप पड़े रहते हैं, माइक बंद करते, कैमरा बंद करते, चुप ऐसे एकदम पीछे खाना खाते. कोई बैठे एकदम चुप एकदम. अहो कधी संपणार हो तुमचं लेक्चर हो? मला बंद करायचं आहे, माझी मैत्रीण तिथे बोलवते, मला ते जायचंय मला. कुछ लोग ऐसे भी है. ये सर एनर्जी नहीं है बॉडी में. बोलते ना, आओ मैं खूब दमलो है. झूठ बात. झूठ बात. कैसे? हाउ? आपको पता है बाबा अंसार बोलते हैं, मतलब मैं, एनर्जी बॉडी में नहीं रहती है, एनर्जी माइंड में रहती है. करेक्ट. मेंटालिटी में होती है एनर्जी. व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज द प्रूफ? I'll give you the proof here. If you see there, energy is not there in the body, energy is there in our minds. Energy is there in our mindsets. Energy is there mentally in our head. Energy is not there in the body. People say there energy is in there in the body, but I say energy is not in their body. It is what? In the minds. Let me explain you how and why. अभी आप लोग क्या करते हैं? स्टार्टिंग में जब कोर्स लगाते हैं, इंग्लिश कोर्स लगाते हैं, कोई भी कोर्स लगाते हैं, जिम लगाते हैं, बहुत एकदम जोश में रहते हैं. मला 6 ऍप पाहिजे, असे मस्त कडक शोल्डर, बायसेप, बिसेप, एकदम ट्राइसेप, कट बीट चाहिए. ये से नो. 1 महीना हुआ, आई ग, अगं दुखते ग, जाऊ दे आता मी नाही जाणार जिमला. ये से नो. होता है क्या नहीं? Yes. लिटरली ऐसे ही होता है. जैसे भी आप लोग मेरे साथ में कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ में ऐसे अन्याय कर रहे हैं. माइक वगैरह बंद करके बैठे, मेरे को कोई हाँ ना बोल ही नहीं रहा है. जब आप लोग आए थे क्लास के लिए तो आप लोग कैसे एक्टिव थे? हाँ, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस नो, बहुत चल रहा था. और अभी शिकवा, चला आम्हाला काय शिकवताय, आता लॅपटॉप ओपन करून बसलोय, शिकवा आम्हाला. मतलब नहीं, वो एनर्जी डाउन हो रहा है आप लोगों का. एनर्जी आपके बॉडी में नहीं, आपके मेंटालिटी में. लेट मी टेल यू हाउ. अब फॉर एग्जांपल हमारा रज्जो है. अभी रज्जो क्या किया? सुबह में 9 बजे गया काम पे, और रात को काम करते करते रज्जो को बज गए 9. मतलब बेचारे रज्जो ने 12 घंटे काम किया, सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक के. कितना घंटे काम किया? 12 आवर्स. 12 घंटे. 12 घंटे काम करने के बाद में रज्जो घर पर आया हमारे. यस नो. अपना रज्जो घर पर आया. घर पर आने के बाद में बिल्डिंग के नीचे खड़ा था. अभी रज्जो का घर कहाँ पे है? 11th फ्लोर पे, 11वें फ्लोर पे. 11वें फ्लोरला आहे रज्जोचं घर, आहे का नाही? अब जाके देखा तो लिफ्ट बंद. अरे यार, आई ग, लिफ्ट बंद. आता काय करायचं? आता वॉचमॅन सोबत आपण बेसमेंट मध्ये झोपणार का? वॉचमैन के साथ में भी नीचे बेसमेंट में सोएंगे क्या रज्जो? क्या करेंगे? क्या करेंगे? रज्जो की ब्यूटीफुल वाइफ है, घर पे वेट कर रही है रज्जो का. रज्जो अभी नीचे बिल्डिंग के नीचे. अरे यार लाइट गई है यार. रज्जो के पास में एक बहुत बड़ा पोता भी है वेजिटेबल्स वगैरह का. अब रज्जो क्या करेंगे? नीचे बेसमेंट में सोएंगे क्या? नहीं. विल क्लाइम अप द स्टेयर्स. यस नो. Yes. स्लो. अगं आलो मी, थांब ग तिथंच. अगं आलो मी. लिया वो, और छोटा कदम के साथ में अपना रज्जो 11th फ्लोर पर
टिंग टोंग टिंग टोंग, घर पर पहुंच गया रज्जो। रज्जो थका हुआ है कि नहीं? Yes. 12 आवर्स बेचारे ने मेहनत किया पूरा दिन भर, उसके ऊपर से 11th फ्लोर चढ़कर आया, उसके ऊपर से 20 किलो का पोता भी था कंधे पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा थका हुआ है। अब नाउ लेट मी टेल यू, जैसे रज्जो की वाइफ ने दरवाजा खोला, रज्जो जाके ऐसा सोफे के ऊपर पड़ गया रज्जो। ये सुनो, अब वहां पे हुआ क्या, रज्जो ने बोला अगं पाणी आण ग, प्यायला मला पानी लेके आ। ये सुनो, अभी रज्जो को अचानक में मैसेज आया, रज्जो को क्या आया, टिंग टोंग मैसेज आया। मैसेज में क्या था, बैंक का मैसेज था कि रज्जो के अकाउंट में किसी ने तो भी 15 लाख रुपए डाल दिया है। रज्जो क्या करेंगे देखने के बाद में, आय कोणी टाकलंय राव, कशाला टाकलंय माझ्या ह्याच्यामध्ये, अरे काढून टाक, नाही पाहिजे मला, निकल के लो, नहीं मांगता मेरे को, ऐसे बोलेंगे? No. क्या नहीं करेंगे सर, रज्जो, क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो मोमेंट पे जब उनको मैसेज मिलेगा, महक मैसेज मिला चप्पल आपने, आती है। 15 लाख रुपए मिले, ओ माय गॉड, महक के अकाउंट में 15 लाख आ गए, तो आप क्या करेंगे वो टाइम पे, ओ माय गॉड 15 लाख, आप उठा के डांस करना शौक स्टार्ट करेंगे। लगेगा ये सर मुझे। शॉक नहीं, पूरा मीटर का ट्रांसफॉर्मर फूटेगा अपने सर का। ये सर ओ माय गॉड 15 लाख रुपए मिले, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, आप लोग उठ के नाचना स्टार्ट करेंगे। ये सुनो, Yes. अभी थके हुए नहीं है, अभी नहीं थके हुए सर, नहीं। काय का पानी भी नहीं मांगता मेरे को, पानी ओनली मिल्क एंड जूस लेके आओ, बादाम का जूस लेके आओ। यस, अपन अमीर झालो, श्रीमंत। अरे अभी एनर्जी कहाँ गई, अगं आज मला उठता पण येत नाही, अभी नाच रहा कैसे था, फिर कैसे नाच रहा था, एक्चुअली द एनर्जी इज देयर इन द मेंटालिटी, इन द माइंड, इन द हेड। यस और नो, Yes. एनर्जी यहाँ पर है, बॉडी में नहीं है। सेम केस, अभी वही रज्जो है, रज्जो की सेकंड वाइफ, वहां पे रज्जो को ऐसे मैसेज आया, आपकी सेकंड वाइफ मर गई। अरे रज्जो को शॉकिंग मैसेज मिल गया, रज्जो बेचारा फेल हो गया, ओ माय गॉड, आधे मार्क्स से फेल हो गया, मींस व्हाट, शॉक लग गया उनको। यस नो, अभी ना चाहिए क्या? नहीं. सेम केस, अभी महक नहीं मैडम है, सर, बर्थडे मना रही है, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे वगैरह मना रही है मैडम, है कि नहीं, एकदम नाच रही बिच रही, एंजॉय, हैप्पी बर्थडे, और अचानक में उसकी सहेली का फोन आया। क्या क्या फोन आया सहेली का, आगे सहेली 4 सब्जेक्ट में फेल हो गई तू, हाँ पार्टी कैंसिल, पार्टी कैंसिल, बाय। अभी इतना एनर्जी था, कहाँ गया, कहाँ गया एनर्जी, भागी क्या मैडम? What? नहीं भागी है, मेंटालिटी, माइंड के अंदर होता है एनर्जी हमारे। आई गेटिंग द पॉइंट? सो एनर्जी इज हियर, नॉट इन द बॉडी, सो बी एनर्जेटिक। समझ में आ रहा है? अभी भी देखो, मैं इतने बड़ा लेक्चर दिया मैंने, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं निपट बेशरम, और तुम कितना भी बोलो हम माइक चालू नहीं करेंगे, हमको हमारे माँ की कसम। कैसे डेंजर लोग हैं यार। एक काम करो आप लोग, या तो मेरे को कैनल का एड्रेस दो, या तो फिर मैं आप लोगों को कैनल का एड्रेस देता हूँ। चलो जाके लेट्स गो। कूद जाएंगे सर। देखो देखो वो देखो मेरा दुश्मन, वो क्या बोल रहा है, देखो पहले जाके तुम कूदो, जाके कूद जाएंगे बोले, ये देखो ऐसे रहता है। My 4 wives and 25 children will cry. Let's go. Now countable and uncountable. यस सर, आई नो। Oh really? Okay, let's go. अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, another thing is there, countable and uncountable nouns. Okay? अभी कुछ ऐसे नाउन है जो कि काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। फॉर एग्जाम्पल हेयर, हेयर, अभी हेयर को हम लोग काउंट भी कर सकते हैं और नहीं भी काउंट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि मैंने हेयर निकाला, सो दिस हेयर इज व्हाट, काउंटेबल, 1 हेयर। और पूरे हेयर, पूरे मेरे सर के बाल, कैन वी काउंट इट? Yes. So hair is countable as well as Uncountable. uncountable. Next, holiday. Holiday is also countable as well as uncountable. Now we have 2 days holiday, Saturday, Sunday. Yes or no? Yes. We have 2 days holiday, Yes. Saturday, Sunday. And Corona ने आपल्याला किती holidays दिलेत? Yes. Yes. Enjoy, unlimited, unlimited. Yes or no?
Can we count Yes. those holiday? No. आणि अजून किती No, sir. सुट्ट्या भेटणार आहेत आपल्याला? और कितने छुट्टी मिलने वाली मालूम है अपने को कोरोना की वजह से? No. So holiday is countable as well as I think uncountable. अरे अब नहीं मिलना चाहिए यार, बहुत तंग आ गया हूँ. If you are free, then we can take class on Saturday as well, okay? For the Yes. compensation, okay? ऐसे तुम्हारे भाभी ने बोले, तुमच्या वहिनी जर बोलले मला की क्लास घ्या, मग क्लास घेतो मी, okay? Let's go. मजाक कर रहा हूँ, वहिनी भी नहीं कुछ नहीं हाँ. चलो, let's go. Cake. Cake is also uncountable. Can we count cake? Yes, we can count. Counting. Correct. Cake is countable as well as uncountable. For example, रजा का बर्थडे केक, महक का बर्थडे केक, सुप्रिया का बर्थडे केक. कितने केक है? 3 cakes. Yes or no? Correct. Same case. अभी वो केक का चूरा बना दिया, Yes, क्रम. अब क्या हो जाएगा वो? Powder. Powder. And that is what? Uncountable. So cake is countable as well as Uncountable. uncountable. Next one, chicken. Chicken has two meanings. एक chicken which is countable, एक chicken जो कि uncountable है. Countable chicken कौन सा होता है? मुर्गी का बच्चा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Chicken. Okay, that is countable. And uncountable chicken कौन सा है? उसका meat. Chicken meat होता है ना. तो केजी में काउंट कर सकते हैं ना? पण केजी नाही, आपल्याला फिंगर वर काउंट करू शकतो का आपण? नहीं. तो फिर वो अनकाउंटेबल है. ओके, केजी में तो फिर हम लोग ऐसे इसको भी काउंट कर सकते हैं, चॉकलेट को लीटर में. केजी में तो फिर हम लोग मीट को भी काउंट कर सकते हैं. चॉकलेट और Yes, sir. काउंट. हाँ सर, मतलब हर लिक्विड काउंट हो सकता है. Very good boy. Next one, chocolate is also uncountable. How? And countable as well. 1 candy, 2 candies, 3 candies, 1 Cadbury, 2 Cadburys, 3 Cadburys. Yes or no? But chocolate melt होने के बाद में क्या बनता है? Liquid. Liquid. And liquid is Uncountable. correct. If you go to malls, you will find there in the malls you have hot chocolate in the cup, right? Yes. And that chocolate is Liquid. liquid, uncountable. Yes or no? So chocolate is countable as well as uncountable. 1 Cadbury chocolate है, so that is countable. 2 Cadburys chocolate है, countable. But hot chocolate जो जग में आता है, जार में आता है, that is what? Uncountable. Okay? Let's go. Infinite. What do you mean by infinite? Unlimited. Correct. Unlimited. अनगिनत. उसके आगे मैंने C लिखा हूँ. C मतलब नहीं countable का है. It is countable, but इतने होते हैं कि अपन उसको गिन नहीं सकते. It is really countable, but there are so many that we can't count them at all. For example, star. Can we count stars? Yes. No. 1 star, 2 stars, 3 stars, 4 stars. But how many stars are there in the sky? Can't count. We can't count. Correct. So sky is what? Infinite. Uncountable nahi, infinite. Sky is infinite. Sky is actually countable. See, sky is countable, but it is what? Infinite. Okay. Next one. Leaf, पत्ता. पत्ते को अपन काउंट कर सकते हैं. 1 पान, 2 पान, 3 पान. बट पूरे झाड़ के ऊपर कितना है हम लोग को काउंट कर सकते हैं हम लोग? No. No. No, It sir. is absolutely infinite. Okay. Next one. Human beings. I can count. I am human being. Correct? मैं एक human being हूँ. आप लोग हैं? Yes. हाँ नहीं बोल रहे. हाँ नहीं बोल रहे आप लोग. Yes, yes. Yes, sir. तो अभी जैसे अपने क्लास में 9 human beings हैं. We can count it. 1, 2, 3, 4, 5. Yes or no? But in the whole world, how many human beings are there? Can we count them? No. No. So human beings are what? Infinite. Any doubts? No. So here we have finished the topic of our uncountables. Any doubts to anyone? Mr. Pawar? Sir, illness is uncountable. Absolutely. No doubt, sir. Illness is also uncountable. अभी आपण बोलू शकते क्या? अहो काल रात्री काय झालं माहिती? एवढं गार वाटत होता. मी 27 मला कोल्ड वाटले आणि मी आजारी पडलो. Sir, temperature. नहीं, टेम्परेचर अलग चीज है. इलनेस जो है, इलनेस अपन इलनेस को काउंट कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि अपनी सहेली है सना, है कि नहीं? अभी सना मैडम ऐसे बेड पे पड़ी हुई है. अरे मैं बहुत बीमार हूँ रे. कैसे मालूम पड़ेगा? ओ माय गॉड 70 बीमार है, झटका लग रहा है. कैन वी से लाइक दिस? No. No. So ultimately it is what? Illness is also uncountable. Any doubts? Any questions? Sir, recovery. Recovery?
recovery is countable ना? नो, इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. हाँ, परसेंटेज में अगर आप बोल रहे हैं तो वो काउंट कर सकते हैं. वो परसेंटेज भी कौन से लेवल पे करते हैं? ह्यूमन बींग्स को काउंट करते हैं उन लोग. सो ह्यूमन बींग्स आर व्हाट? काउंटेबल है ना, बट इनफाइनाइट है. वो परसेंटेज के अंदर काउंट करते हैं उसको, वो एक अलग चीज है. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अभी फॉर एग्जांपल ये बॉटल में कितना परसेंट वाटर है मैम? कैन यू प्लीज टेल मी? आप भी बता सकती हैं, कोई भी बता सकता है. कितना परसेंट वाटर है अभी फिलहाल में इसमें? 1 लीटर. नहीं, ऊपर खाली है, देखो थोड़ा. 9, कितना परसेंट है? 90%. 90%. हम लोग बोल 90%. सकते हैं 90-95%. करेक्ट, हम लोग बोल सकते हैं. यस और नो? सो Yes. परसेंटेज हम लोग ऐसे किसका भी निकाल सकते हैं, एंड इट इज काउंटेबल. फॉर एग्जांपल गंगा में पानी कितना है? 30%. बोल सकते हैं हम लोग. यस और नो? काउंट करके अपने दिल से बोल सकते हैं कि नहीं? सो परसेंटेज अलग चीज है और रिकवरी अलग चीज है. ओके, अभी फॉर एग्जांपल अभी अपन बीमार थे, अब मैं रिकवर हो रहा हूँ, तो मेरे को ऐसे मालूम पड़ता है क्या? ये अच्छा हो रहा है. 70, 80, 90, 100 ऐसा होता है क्या? No. सो रिकवरी रेट अपन वैसे नॉर्मली नहीं बताएंगे. सो इट इज व्हाट? अनकाउंटेबल. ऑलराइट, लेट्स सर गो पर फॉर द डॉक्टर नेक्स्ट. तो बताते, हाँ, तो वो डॉक्टर परसेंट तो वो बताते. खाली, आओ मैडम, वो फेंकते खाली, वो जैसे भी मैंने फेंका इधर. अभी बराबरी 95% खाली है क्या? सॉरी 95% भरी हुई है क्या? अभी आपको मालूम है क्या कंफर्म? नहीं. अपन खाली अपने अंदाजे से बोलते हैं. फक्त अपना क्या होता है, अंदाजा होता है वो, तो वो उस हिसाब से बोलते हैं खाली. अदरवाइज उसका रिकवरी रेट का कुछ ये नहीं है. क्या रेशियो नहीं है उसका कुछ भी. इट इज जस्ट जजमेंट है उन लोग का एक खाली. ऐसा हो सकता है, बस इतना ही. Okay, so today is what, 2nd of June, and we are going to continue our uncountables in English with some of the rules. अब जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ अनकाउंटेबल्स का कुछ रूल है. ओके, क्या रूल है, कैसे रूल है? अभी तक हम लोगों ने जो सेंटेंसेस बनाया था वैसे सेंटेंस नहीं आएगा. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अ न्यू टॉपिक, एंड दैट्स व्हाट? डिटरमिनर इन इंग्लिश. डिटरमिनर इज व्हाट? क्वांटिफायर. What is a quantifier and what is a determiner? Yes, Identify. determiner. Yeah, determiner and quantifier both are the same. Identify. Yes, what is identify करता है? Very good. Yes, Shoaib, there is class offline every day. Every day I have class in the morning offline. In the morning 8 o'clock. Camp. Yes, there is class offline every day in the morning. Okay, have a look here. So, determiner and quantifier both are the same. What do you mean by determiner? Sir, online. Word. सर Yes. ऑनलाइन क्लास होने वाला है क्या अभी? रहेगा ना. अरे वो शोएब 2 दिन से मेरे को पूछ रहे हैं, पूछ के डायरेक्ट चले जा रहे थे, उनको मैंने अभी आंसर दिया. ऑफलाइन क्लासेस भी चालू है. इफ यू हैव एनी अदर फ्रेंड्स हु आर विलिंग टू जॉइन इन द मॉर्निंग ऑफलाइन क्लासेस, दे कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके, ऑफलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन इन कैंप in the morning, early morning classes there. If you want, even you can join. If your friends want, even they can join. Okay, new batch has started today itself. Let's go. मिलिए शाहरुख खान से सुबह में 8 बजे. चलो, मजाक कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है. Let's go. If you see there, determiner and quantifier both are the same. What do you mean by determiner? A word which determines the sentence or the noun. और quantifier, a word which shows the quantity. ऐसा वर्ड जो कि क्वांटिटी बताता है उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिफायर. ओके, डिटरमिनर भी उसको ही बोलते हैं, क्वांटिफायर भी उसको ही बोलते हैं. आज का हमारा टॉपिक है न्यू, डिटरमिनर एंड क्वांटिफायर. ओके, नाउ टिल नाउ वी यूज्ड टू मेक सिंपल सेंटेंसेस. यस और नो? अभी तक के हम लोग जो सेंटेंसेस बनाते थे वो कौन से सेंटेंस थे? एकदम सिंपल सेंटेंसेस थे. यस और नो? अभी तक हम लोग जो सेंटेंस बनाते थे वो कैसा था? दिस इज अ कार. यस और नो? दिस इज अ कार. करेक्ट, सिंपल सेंटेंस था वहां पर. फॉर एग्जांपल, these are cars. हे कार्स आहेत, है का नाही? हे कार आहे आणि हे कार्स आहेत. वहां पे डिटरमिनर्स हम लोग यूज नहीं करते थे. यस और नो? बट दिस इज वाटर. कितना पानी हम लोग को मालूम पड़ रहा है क्या? No. नो. अभी तक के हम लोग खाली सिंपल सेंटेंसेस यूज करते थे. दिस इज अ कार, these are cars. ये कार्स है. कितनी कार्स है मालूम पड़ रहा है हम लोगों को? नहीं. नो. दिस इज वाटर. कितना पानी मालूम पड़ रहा है हम लोगों को? No. No. So ultimately, we were unaware about the quantity, about the determiner in the sentence. So now today, we are going to see determiner and quantifier in English. Okay? We are going to see today determiner and quantifier in
English. अभी determiner and quantifier होता क्या है ये? A word which shows the quantity of a noun is called determiner and quantifier. Okay, let's go. अब वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ. Let's go here. Now here is the chart for determiners and quantifiers in English. What is quantifier? Which shows quantity. Which is determiner which determines a noun. ऐसा word जो कि noun को determine करता है, जो कि उसकी quantity बताता है, हम उसको क्या बोलेंगे? Determiner and quantifier. Okay? जो भी बंदे आज एब्सेंट है बहुत पछताएंगे वो लोग. ओके, और जिसने भी लेक्चर को मिस किया है, प्लीज गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स वंस अगेन. ये रिकॉर्डिंग को बार बार देखते रहो, आप लोग को इंग्लिश अच्छा हो जाएगा. नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव डिटरमिनर्स ऑफ टू टाइप्स. रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिली इसकी. मैम मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ इफ यू सी देयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश. अपने पास दो टाइप के डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स हैं इंग्लिश में. व्हाट आर दोस? काउंटेबल डिटरमिनर्स and uncountable determiners. Countable quantifiers and uncountable quantifiers. We have two types of determinants and quantifiers. Determiner होता क्या है? ऐसा word जो कि quantity बताता है. Okay, उसको हम लोग बोलेंगे determinant and quantifier. We have two types of determinants and quantifiers, which is countable and uncountable. For example, and there are some determinants and quantifiers which are countable as well as uncountable. For example, these are the determiners. कुछ ऐसे determinants है जो कि countable भी है और uncountable भी. For example, sum. Sum is what? Sum is what? कुछ. Sum मतलब ये थोड़ा. Yes or no? Sum का मतलब क्या होता है? कुछ. So we can use their sum for countable nouns as well as uncountable noun. अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ. Countable noun के अंदर हम लोग ले लेते हैं chair. Okay? And uncountable noun के अंदर हम लोग लेते हैं water. Water. Okay? Countable noun में हम लोगों ने लिया chair. Uncountable में हम लोग लेते हैं water. So some we can use for countable noun as well as uncountable noun. For example, there are some chairs. Yes or no? वहाँ पे कुछ chairs है. I'm using some with countable noun. And there is some water. There is some water in the bottle. उस bottle में कुछ पानी है, थोड़ा पानी है. Yes or no? Yes. So we can use their sum for countable noun as well as uncountable noun. Next one, a lot of. We can use a lot of with countable as well as uncountable. We can use a lot of with countable as well as uncountable. For example, there are a lot of chairs. वहाँ पे बहुत सारी chairs हैं. वहाँ पे बहुत सारी chairs हैं. We can use a lot of with countable nouns and there is a lot of water in the bottle. बहुत ज़्यादा पानी है. So water is uncountable. We can use a lot of with countable as well as uncountable nouns. Next one, any. Any का मतलब होता है कोई. Okay? For example, are there any chairs? क्या वहाँ पे कोई chairs वगैरह हैं? Are there any chairs? क्या वहाँ पे कोई chairs हैं? Or is there any water? So chair is countable noun. So we are using any for countable noun and water any. For example, is there any water? क्या वहाँ पे कोई पानी वगैरह है bucket में, bottle में? Okay. So is there any water? So water is uncountable. We can use any for uncountable also. Next one. अब आते हैं कुछ ऐसे nouns हैं जो कि सिर्फ काउंटेबल के, जो कि ऐसे डिटरमिनर्स है जो सिर्फ काउंटेबल के साथ में यूज होते हैं, और कुछ ऐसे डिटरमिनर्स हैं ये सिर्फ काउंटेबल के साथ में यूज होते हैं, और कुछ ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो कि सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेनी. मेनी मतलब नहीं बहुत, खूब. वैसे ये मच, बोथ आर द सेम. दोनों का रेटिंग मैंने लिखा हूं, देखो यहाँ पर स्टार्स. करेक्ट, वो स्टार्स बता रहे दोनों का रेटिंग क्या है. ओके, मेनी मतलब नहीं बहुत, मच मतलब नहीं बहुत. But we are using many only for countable nouns. Much we are using only for uncountable nouns. For example, many. There are many chairs. वहाँ पे बहुत सारी chairs हैं. There are many chairs. But मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ. There are many water. ऐसा गलत हो जाएगा. Water के लिए क्या use करेंगे? Much. For example, there is much water in the bottle. ये bottle में बहुत ज़्यादा पानी है, काफी पानी है. Yes or no? There is much water in the bottle. So many and much both are the same. मेनी मतलब नहीं इतना, बच मतलब इतना, बहुत ज्यादा. ओके, नेक्स्ट वन, अ फ्यू मतलब नहीं थोड़ा. दिख रहा है आपको, मेनी से थोड़ा है वो कम है, मेनी से थोड़ा कम है रेटिंग्स में. यस और नो? We can use sorry sir, hello. Yeah. Hello. Yeah, speak up. Hello, Mr. Jay. Hello. Sir, my question is that use much.
Hello. We can use much only for uncountable. Hello. Hello, are you able to listen to me? Hello. Are you listening me? Hello. Hello. Disconnect and join once again. Hello. Are the others listening me? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Mr. Jay, disconnect and connect again. Jay, disconnect and connect again. जय का प्रॉब्लम है वहां पर. Okay, so use here much for uncountable. We can use here much for uncountable. For example, there is much water. Okay, वहां पे बहुत ज्यादा पानी है. Next one, a few. A few मतलब नहीं थोड़ा. See, रेटिंग मैंने दिया हो नीचे यहाँ पर. A few, many much से बहुत थोड़ा कम है. दिख रहा है stars. वो star खाली आपको रेटिंग बताने के लिए. A few मतलब नहीं थोड़ा. We are using a few only for countable nouns. Okay, only for countable nouns. For example, there are a few chairs. वहां पे थोड़े chairs हैं. Same case a few के जैसा है a little. We are using a little only for uncountable nouns. Okay. For example, there is a little water. इसमें थोड़ा पानी है. There is a little water. There is a little water in the bucket. Next one, few. Few का मतलब क्या होता है? उससे भी थोड़ा. उससे भी थोड़ा. See that? Sound is not coming. Hello. Sir. Yes, sir. Am I audible to all of you? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. इसको साउंड नहीं आ रहा है. I think उनके Yes, नेटवर्क का प्रॉब्लम sir. हो सकता है. Okay. सर बाहर का आवाज आ रहा है बहुत. अरे रज्जो, बच्चे लोग के साथ में नहीं बैठने का. नहीं सर, मैं तो टेरेस पे हूँ सर, मेरे पास नहीं आ रहा. पता नहीं किसी ने तो भी ऑन किया था अभी. ओके, सो few का मतलब होता है उससे भी थोड़ा कम. फॉर एग्जाम्पल, देर आर few chairs. वहां पे थोड़े चेयर्स हैं. नेक्स्ट, देर इज लिटिल वाटर मतलब वहां पे बहुत थोड़ा पानी है. ओके, देर आर few chairs मतलब वहां पे थोड़े चेयर्स हैं. एंड देर इज लिटिल वाटर मतलब वहां पे थोड़ा पानी है. नेक्स्ट, fewer. fewer का मतलब है नहीं के बराबर. नस्लत जम अपन बोलते हो ना, मतलब नहीं के बराबर, बहुत कम. फॉर एग्जाम्पल, देर आर fewer chairs मतलब बहुत कम चेयर्स है. सी द रेटिंग. सी द रेटिंग. वहां पे बहुत कम चेयर्स है. देर आर fewer chairs एंड सेम केस लेस. लेस मतलब है नहीं बहुत कम. देर इज लेस वाटर मतलब वहां पे बहुत कम पानी है. देर इज लेस वाटर. ओके, सो fewer chairs, less water. Now let me give you one more example. अब जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी एग्जांपल दिया. यस मैम. a few मतलब a means one ना. हाँ, बट यहाँ पर a few का यहाँ पर a का दूसरा मीनिंग है. अब इंग्लिश में आपको मालूम है a के मीनिंग कितने? कितने लोगों को बताया मैंने a के मीनिंग कितने इंग्लिश में? मिस सना, मिस आयशा, मिस्टर रजा. एक one. एक्चुअली मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ. वो इंग्लिश में a के मीनिंग कितने हैं? कितने लोगों को पता है? रजा, डू यू नो? मिस आयशा, डू यू नो? मिस आयशा, मिस सना. इंग्लिश में ए के कम से कम मैम 5 से 6 मीनिंग है. कितने? 5 से 6. करेक्ट. बट उसका सबसे मेजर मीनिंग है 1. सबसे मेजर मीनिंग है उसका 1. अब यहाँ पर भी अ आ रहा है, यहाँ पर भी अ आ रहा है. ये सुनो, बट यहाँ पर उसका मीनिंग अ का 1 नहीं है. अ का मीनिंग 1 नहीं है. एक्चुअली वी आर यूजिंग अ फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हम लोग अ का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. अ फ्यू मतलब नहीं, अ थोड़े के लिए भी यूज होता है. ये इसका दूसरा मीनिंग है. अ कभी कभी ज्यादा के लिए भी यूज होता है. ये इसका तीसरा मीनिंग है. नेक्स्ट, अ द के ऐसे एक्टिंग भी करता है. ये सुनो मिस सना, परसों के दिन मैंने क्लास में पढ़ाया था सुबह में. Yes, sir. करेक्ट. What? अ को हम लोग द की तरह भी यूज कर सकते हैं. द बोलते हो ना, द अपन Okay. द का भी यूज करते हैं हम लोग इंग्लिश में. जब कोई चीज बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा खास, इंपॉर्टेंट, स्पेशल, स्पेसिफिक, ये सर पॉपुलर, इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके लिए अपन द लगाते हैं. करेक्ट. Yes. वैसे ही कभी कभी अ इंग्लिश के अंदर द के ऐसा काम करता है. वो कब करता है, कैसे करता है, वो अपन आगे के एपिसोड में देखेंगे. ओके. सर यूनिवर्सल थिंग के लिए भी तो यूज करते हैं. एब्सोल्युटली यू आर Sir, राइट. much द के use करें. द के मैम मोर देन 50 रूल्स है. कितने रूल्स है द के? मोर देन 50.
वो अपन अभी आगे अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं. Okay. यस यस. Thank you. मर्ज के लिए भी यूज करेंगे क्या? नहीं, उनके लिए मच के लिए अ यूज नहीं करेंगे. मेनी के भी लिए अ यूज नहीं करेंगे. लॉट ऑफ यस. खाली लॉट ऑफ के लिए और फ्यू के लिए, लिटिल के लिए अपन अ यूज कर सकते हैं. एक्चुअली वहां पर वो अ का मतलब एक नहीं है. वहां पर उन लोगों का ऑलरेडी वर्ड बनाया है ब्रिटिश लोगों ने. अ फ्यू मतलब है नहीं थोड़ा, अ लिटिल मतलब है नहीं थोड़ा, अ लॉट ऑफ मतलब है नहीं बहुत ज्यादा. ये उन लोगों का ऑलरेडी वर्ड बनाया हुआ, उसके पीछे कोई रूल नहीं है. ओके. Okay. नेक्स्ट वन इज व्हाट? फीवर मतलब है नहीं एकदम कम. सर मेरा प्लीज. क्वेश्चन, मच या मैम मतलब प्लीज आस्क. मच मच मतलब बहुत. ज्यादा, और उससे भी ज्यादा और लॉट ऑफ क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. a lot of मतलब नहीं बहुत ज्यादा, बट a lot of काउंटेबल के लिए भी यूज होता है, एंड वी कैन यूज a lot of फॉर अनकाउंटेबल आल्सो. बट मच जो है वो सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा. एंड मेनी जो है उसका भी मतलब होता है बहुत, बट मेनी यूज होगा ओनली फॉर काउंटेबल. ऐसा भी नहीं है उसका. ऐसा कुछ ये नहीं कि उससे ज्यादा है या फिर उससे कम है. a lot of मतलब नहीं बहुत ज्यादा होता है. मच मतलब भी ज्यादा ही होता है, काफी होता है. फिर भी सर यूज करेंगे, क्या मैम? फिर मच को ओ नहीं यूज करेंगे हम? नो, मच के लिए अ यूज होता ही नहीं है. मच के लिए अ यूज नहीं होता है. ओके. या ओके. फीवर का मतलब क्या होता है? बहुत कम, ना के बराबर. ओके, सी द रेटिंग्स. सो फीवर मतलब बहुत कम. देयर आर फ्यूअर चेयर्स. यस. Fever और जो ताप, मराठी में ताप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हमें पता. फीवर को क्या बोलते हैं? ताप, जुकाम. नहीं, ये वो वाला फीवर नहीं है. वो जो ताप वाला फीवर है ना, वो वाला फीवर कौन सा है? FEVER. ताप से जो फीवर आहे ना, तो आहे FEVER. ताप आला है ना का, बुखार जिसको बोलते हैं हिंदी में. दैट इज नॉट फीवर. वो ये वाला है. और ये फीवर अलग है. ये फीवर W वाला है. सो W वाला फीवर मतलब खूप कमी, नसल्यात जमा आपण बोलतो ना तसं. सो खूप कमी मतलब यानी बहुत कम. Pronunciation are same. हाँ, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है. सेम मतलब थोड़ा सा अलग है. ये कैसा है? फी व. कैमरे में देखो. फी व. ये वाला. और जो ताप वाला होता है, बुखार वाला, वो होता है फी ब. फी ब. ओके. Fever. करेक्ट. फी व ये वाला, और फी ब वो ताप वाला रहेगा. ओके. सो फीवर मतलब ये नहीं के बराबर. ओके. बहुत कम. फीवर. सो आई हैव फीवर चेयर्स. मेरे पास बहुत कम चेयर्स हैं. एंड लेस मतलब यानी बहुत कम. लेस वी आर यूजिंग ओनली फॉर अनकाउंटेबल्स. देयर इज लेस वाटर मतलब बहुत कम पानी है. देयर इज लेस वाटर. ओके. देयर इज लेस वाटर. नेक्स्ट वन, नंबर्स किस में आएगा? ओनली काउंटेबल. नंबर्स अपन काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3, 7, 78, 98, कुछ भी बोल सकते हैं. मोर देन 2 और मोर देन 2. ओके. 2 और मोर देन 2, दैट्स व्हाट नंबर्स आएगा ओनली काउंटेबल के अंदर. एनी डाउट्स? मैं आप लोग को एक और बार समझा देता हूँ कि ये चार्ट कैसा है. ये चार्ट के ऊपर अपने को सेंटेंस बनाना है. इफ यू सी देयर, मेनी, अ फ्यू, fewer. Next, much, a little and less. Okay, let me give you example. Many, a few, fewer. Many मतलब बहुत, a few थोड़ा, few उससे थोड़ा, fewer सबसे थोड़ा, नहीं के बराबर. For example, I have many chairs in my class. I have a few students in my class. मेरे पास में बहुत सारी chairs हैं मेरे क्लास में. उसमें से students सिर्फ इतने हैं. I have only few intelligent students in my class. और उसमें से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इतने हैं. एंड ओनली फ्यूअर स्टूडेंट्स आर देयर हु पे द फी. और उसके अंदर से स्टूडेंट्स फी पे करने वाले सिर्फ इतने. समझा? सेम केस अभी जैसे कि पानी की बोतल है. ओके. पानी अगर इधर रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा? मच. करेक्ट. मच. आई हैव मच वाटर. यस नो, बहुत ज्यादा पानी है. आई हैव मच वाटर. यहाँ पे रहेगा तो करेक्ट. अ लिटिल वाटर. नेक्स्ट, Little. करेक्ट. आई हैव लिटिल वाटर. और नेक्स्ट, Less. करेक्ट, लेस वाटर. समझ में आ रहा है? अभी ऐसे बीच में उंगली रख के नहीं बोलो अरे यार इधर का सर ने नहीं बोले थे, सर ना कॉल कर.
आओ इतना वाटर है, काय बोलू आता मी? थोड़ा दिमाग यूज करने का, जरूरी नहीं है इधर रहेगा तो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये बॉटल के अंदर कितना पानी है, इतना है, ये नो, इतना खाली है, इतना एम्प्टी है। मैं इसको भी बोल सकता हूँ, ओह देयर इज मच वाटर इन द बॉटल, है कि नहीं? Okay. Yes, sir. वो अपनी सोच के ऊपर है, अपनी सोच के ऊपर है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि ये बॉटल थी किसकी, शोएब की। अब वो बॉटल में से मैंने पानी पी लिया, तो शोएब क्या बोलेगा, ओ माय गॉड इतना सारा पानी किसने पिया, ओ माय गॉड। सोचने वाले के ऊपर है, ये नो। Yeah. सो अपन अपने हिसाब से बोल सकते हैं उसको मेजर करके। सो मच, अ लिटिल, लिटिल लेस, अपने हिसाब से अपन बोल सकते हैं। एनी डाउट्स टू एनीवन? नो सर, क्वेश्चंस? No. नो सर। यस। सो नंबर्स आ गए, नंबर्स के ऊपर भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे विच ओनली काउंटेबल। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव फिनिश्ड कंप्लीटली आवर काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स इन इंग्लिश, ऑलराइट? यहाँ पे हमारा Yes, sir. कंप्लीटली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल फिनिश हो गया है। कल हम लोग इसका सेंटेंसेस देखेंगे बेसिक से, ओके? And the sentences will be going on for 1 week, and after that we are going to switch into the intermediate batch, जहाँ पे मैंने मिस आयशा, मिस्टर रजा, मिस सना, मिस महक वगैरह लोगों को छोड़ा था। हम लोग वहाँ पे से वापस पहुंच जाएंगे, ऑलराइट? सो nobody will be absent, nobody will be absent. Any doubts to anyone? Yes सर ma'am. वो इंट्रोडक्शन वगैरह में मिस हो गया, वो उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिला आपको? रिकॉर्डिंग मिला। आपने देखा था रिकॉर्डिंग उसका? हाँ देखा। उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं। कुछ रहेगा तो आप मुझे बोलो ना बिंदास, प्रॉब्लम अगर रहेगा, सो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर